अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिस्ट्री आपको पता है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी एज वेल एज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिसिप्लिन्स जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, because we are having the different sorts of the chemical compounds which are present in the living organisms, and they are doing the reactions, and because of those reactions the life is processing. So those biochemical compounds are like carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, vitamins, enzymes. So many things are there which we are going to discuss in the biochemistry. Today we are going to start with the carbohydrates. In the carbohydrates, we have to study about the occurrence, classification, structure, chemical properties, monodiene and oligosaccharides along with the polysaccharide and glycoconjugates as well. So we are going to start with the initials. That is, what are the carbohydrates? Carbohydrates, which are actually the polyhydroxyaldehydes or the polyhydroxyketones. Now, what are these aldehydes and ketones? You must have studied in the organic chemistry in FSC as well as in the matric that aldehydes and ketones, these are the functional group of the organic compound. In the aldehydes, we are having the carbon which is attached to the oxygen with a double bond, and the one bond with the hydrogen, and the last one bond with the carbon atom as well. That is called as CHO, like RCHO. While in the ketones, we are having the carbon which is making the double bond with the oxygen in the center. Like you are having the ketones in the right side, that is dihydroxyacetone, which is mentioned over there. इसी तरह से आप देखो लेफ्ट साइड पे, दिस इज एल्डिहाइड. So, carbohydrates are considered as the polyhydroxyaldehyde ketones. Why they are called as a polyhydroxy? Because they are carrying a lot of the hydroxyl group attached with the carbon atoms. And they are considered as the sugars. In simple terms, हम carbohydrates को कहते हैं sugars. Mainly, they are composed of the carbon, oxygen, and hydrogen atoms. That's why they are literally terming as the hydrocarbons. Their general formula is CnH2O whole N. Now, in this formula, you can have a look that the hydrogen and oxygen in the carbohydrates, they are just in the ratio of water, like 2 is to 1. Then more than 3 to many thousand compounds are present. More than 3,000 carbon molecules or the carbon atoms are present in a single carbohydrate as well, because you must have studied about the starch and the glycogens which are polysaccharide, जहाँ पे हमारे पास infinite number है. We can add so many carbons in the polysaccharides. Now, what is the significance of the polysaccharide? Have you ever thought of this? सोचें कि नेचर ने सबसे पहले जो कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाया, दैट वाज ग्लूकोज. और उसी से हमें कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन, दे आर मेकिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन दिस अर्थ, which is the glucose molecule. Now, what are actually the sources or where is the occurrence of the carbohydrate? अगर हम प्लांट्स को देखें तो दे आर कैरिंग द वुड, they are carrying the cotton, they are carrying the papers. All these are consisting of carbohydrates. All the organisms, they are carrying the carbohydrates in our body as well. Now we can store the compounds in the form of carbohydrates, like in animals the storage compound is glycogen, in plants the storage compound is starch. इसी तरह से carbohydrates are present in the canned sugar and milk sugar. दे आर एक्चुअली द मेन एनर्जी सोर्सेज. आप सारा दिन में देखिए हम क्या खाते हैं, जहाँ से एनर्जी ले रहे हैं उसमें मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड इज़ कार्बोहाइड्रेट. हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बंद खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं. सो मेजरली इट इज़ कार्बोहाइड्रेट. फिर हम चीनी, हर मीठे हर चीज़ में हम चीनी यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज, काइटिन, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स एज वेल एज द माइक्रोब्स. जैसे काइटिन आपको पता है फंगल सेल वॉल का पार्ट है. देन carbohydrates are actually also making the conjugated compounds whenever they are going to have the bond with the proteins as well as with the lipids. And in cell biology course जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमने स्टडी किया है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को, which are the major part of the plasma membranes.
Now, how we are going to classify the carbohydrates? There are three main classifications: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Now, what does this saccharides mean? Saccharide हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये एक ग्रीक वर्ड है और यूनिट की फॉर्म में हम इसको सैकरॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिंगल, मोनो, वन। सो मोनोसेक्राइड एक यूनिट है, ओलिगो में ज़्यादा यूनिट्स हैं, पॉली में बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं। सो मोनोसेक्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स सिंगल यूनिट, सिंगल शुगर, एंड दे आर द सिंपलेस्ट शुगर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन, और ऐसे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं। हमारे पास मोनोसेक्राइड एक कार्बन नहीं बल्कि इसका मतलब है वन यूनिट। कार्बन नंबर्स वेरीज फ्रॉम 3 to 7, लाइक जो सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है वो भी एटलीस्ट 3 कार्बन पर कंसिस्ट करता है। और इस पेज पे आप देख सकते हो जो सबसे छोटे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसेकेराइड्स, वो ग्लिसरैल्डिहाइड है विच इज़ एल्डोट्रायोज, एंड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन है जो कि कीटोट्रायोज की फॉर्म में है। अच्छा, अब हमारे पास नंबर 3 to 7 वेरी करता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, मोनोसेक्राइड में बात कर रही थी कि भाई दे आर कॉल्ड एज अ मोनो इफ दे आर नॉट कंसिस्टिंग ऑफ द वन कार्बन बिकॉज दे एक्ट एज वन यूनिट। लाइक इससे ज़्यादा ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। जैसे कार्बन 5 है तो हमारे पास वो कार्बन 5 से टूट के मज़ीद अलग अलग नहीं हो सकता, वो एज वन यूनिट ही शो करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड है तो वो 3 कार्बन इकट्ठे ही रहेंगे, वो इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मोनोसेक्राइड। दे आर स्वीट इन टेस्ट, वेरी इजीली सॉल्युबल इन वाटर, आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते एक कार्बन के अलावा जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, अल्डिहाइड में भी एंड कीटोन भी। उस कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन हाइड्रोक्सल के साथ अटैच होते हैं। जैसे आप ग्लिसरैल्डिहाइड में देखें कार्बन नंबर 1, एंड ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में देखें तो कार्बन नंबर 2 विच इज़ इन द सेंटर, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। बाकी रिमेनिंग 2 कार्बन हैं उनके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सल अटैच नहीं है दैट इज़ कॉल्ड एज द कार्बोनाइल कार्बन, जो विदाउट हाइड्रोक्सल है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप 1 में है, इन केस ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है विच इज़ कार्बोनाइल कार्बन। नाउ एल्डिहाइड ग्रुप अगर मौजूद है तो उस शुगर को हम एल्डो शुगर कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसको हम कीटो शुगर कहते हैं। ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन्स मौजूद होते हैं। कैसे? और ये डिफ़र भी करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 कार्बन वाला एक मोनोसेकेराइड है जिसको हम हेक्सोज़ कहेंगे, ठीक? अब वो जो हमारे पास हेक्सोज़ है वो ग्लूकोज़ भी है, वो गैलेक्टोज़ भी है, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन ये जो ग्लूकोज़ एंड गैलेक्टोज़ हैं ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्बन की बेस पे ये एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, और वो है कार्बन नंबर 3। और उस कार्बन को जिसकी वजह से ये वेरी कर रहे हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन की बेस पे इनकी अरेंजमेंट डिफर कर रही है। सो आपको याद होगा आप लोगों ने आइसोमर्स पढ़ रखे हैं। सो दीज आर एक्चुअली द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। जब हम यही जो लीनियर हमारे पास सेकेराइड्स हैं इन मोनोसेकेराइड्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करवाते हैं या किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये हमेशा रिंग फॉर्म में आ जाते हैं, और रिंग फॉर्म में फिर हम वर्ड चेंज कर देते हैं, लाइक ग्लूकोपाइरानोज कह देंगे ग्लूकोज की जगह। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये मेजर न्यूट्रेंट्स हैं सेल का। किस तरह से? कि हमारे पास जब कंपाउंड्स टूटते हैं एनर्जी रिलीज होती है एट द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, तो सबसे पहले वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो हमारे पास फंक्शनिंग करते हैं। इसी तरह से स्मॉलर मोनोसेकेराइड्स जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये हमारे पास न्यू कंपाउंड्स के प्रिकर्सर भी हैं। प्रिकर्सर का मतलब ओरिजिनेटर, लाइक इनसे ही आगे मज़ीद हमारे पास न्यू कंपाउंड्स बन सकते हैं और दूसरी कैटेगरी के बन सकते हैं। जैसे यही हमारे पास आगे अमाइनो एसिड्स भी बना रही हैं, फैटी एसिड्स भी बना रही हैं। सो इफ़ दे आर मेकिंग द अमाइनो एसिड्स इसका मतलब प्रोटीन का पार्ट, इफ़ दे आर मेकिंग द फैटी एसिड्स इसका मतलब लिपिड का पार्ट। Now we are having the different types of monosaccharides on the basis of carbon number atom which are present in those monosaccharides. अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोस, अगर 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस, दैट्स इट।
7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। माइंड में रखिएगा ट्रायोज में एंड ट्राइसेकेराइड में फ़र्क है। ट्रायोज मोनोसेकेराइड्स हैं, जबकि ट्राइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड हैं। ट्राइसेकेराइड का मतलब 3 सेकेराइड्स की यूनिट्स एंड ट्रायोज का मतलब मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन एटम है। सिमिलर इज द केस विद द अदर ओजेज लाइक टेट्रोज हो गया या पेंटोज हो गया। वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोसेकेराइड, जैसे ट्रायोज है। ट्रायोज में 3 कार्बन्स, आप यहाँ पे देख लो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। 2 ट्रायोजेज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच आर वेरी मच कॉमन। ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं रेस्पिरेशन का भी एंड फोटोसिंथेसिस का भी, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इन ट्रांसफरिंग द एनर्जी। बहुत से रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, लाइक बहुत अच्छे मेटाबोलाइट्स हैं। ये हमारे पास बेसिक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। अच्छा, अब चूंकि आप प्योर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने लगे हो इसलिए अब आपको इनके स्ट्रक्चर साथ साथ याद रहने चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट है टेट्रोजिस। टेट्रोजिस का मतलब 4 कार्बन। 4 कार्बन हमारे पास टेट्रोजिस बहुत रेयर होते हैं नेचर में, लेकिन कहाँ मौजूद हैं? एरिथ्रोज में एंड थ्रियोज में, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में। अब हमारे पास नीचे आप देखो एल्डोटेट्रोजिस भी बने हुए हैं एंड कीटोटेट्रोजिस भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे डी एरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज लिखा हुआ है। नाउ दिस डी इट स्टैंड्स फॉर, कि आप यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जो कार्बन CH2OH लिखा हुआ है दोनों में, इससे ऊपर वाला जो कार्बन है विच इज़ एक्चुअली द कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 क्यों? क्योंकि हम एल्डिहाइड से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो कार्बन नंबर 3 में जो हाइड्रोक्सल है दैट इज़ ऑन द राइट साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी। और अगर यही लेफ्ट साइड पे होता तो ये एल एरिथ्रोज होता या एल थ्रियोज होता। देन हमारे पास पेंटोजिस है। पेंटोजिस का मतलब 5 कार्बन। और अच्छा सॉरी, एरिथ्रोज कहाँ मौजूद है? आपको पता है ना, हमारे ब्लड ग्रुप में। इसी तरह से पेंटोजिस हैं। पेंटोजिस तो आपको बहुत अच्छी तरह याद होंगे। हमारे पास राइबोज शुगर, हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं इसका, ख़ास तौर पर जब हम न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, DNA RNA की बात करते हैं। सो 5 कार्बन कंपाउंड है पेंटोज शुगर, ज़्यादा कॉमन है। 2 इंपॉर्टेंट बहुत हैं, राइबोज भी एंड डीऑक्सी राइबोज भी। RNA में राइबोज, डीऑक्सी DNA में मौजूद है। नाउ हमारे पास ये दोनों 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाती हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सो इसीलिए हम इसको फ्यूरानोज रिंग भी कहते हैं। नाउ राइबोज अगर आप देखोगे तो हमारे पास दैट इज़ अ कॉमन पेंटोज शुगर विद द एल्डो ग्रुप। फ्यूरेन इज़ फॉर द 5 कॉर्नर्ड रिंग, नॉट द 5 कार्बन रिंग, 5 कॉर्नर्ड रिंग, क्योंकि आप रिंग में देखें दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन कॉर्नर तो है ना ऑक्सीजन का। देन राइबोज RNA में मौजूद होती है, इसको हम राइबोफ्यूरानोज कह देते हैं। इसी तरह से ये कुछ कोएंजाइम्स में भी मौजूद होती है और ATP में तो है ही है। फिर हमारे पास डिऑक्सीराइबोज भी पेंटोज शुगर है। इसमें और राइबोज में फ़र्क क्या है? अगर आप यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स देखें, ये नीचे अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। राइबोज में हाइड्रोक्सल मौजूद है, जबकि डिऑक्सीराइबोज में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। हाइड्रोक्सिल की जगह जस्ट हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी, लाइक ऑक्सीन नहीं है इसके पास, और ये DNA में मौजूद है। देन हमारे पास है हेक्सोजिस। हेक्सोजिस आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड्स, फार्मूला C6H12O6, जो कि सिंपल हमारे पास हैं ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड सो मैनी अदर्स। अब हमारे पास ये कीटो शुगर्स भी हैं एंड एल्डो शुगर्स भी हैं। एल्डो शुगर्स में अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड एट द टॉप मौजूद होगा ग्लूकोज में, और कीटोनिक ग्रुप में हमारे पास जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर्स आपके पास बने हुए हैं। दिस इज़ अबाउट द ग्लूकोज। जो लेफ्ट साइड पे है लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट साइड पे हमारे पास सर्कुलर या रिंग स्ट्रक्चर है। हमारे पास यहाँ पे एल्डोज शुगर में साथ साथ अब अगर आप देखें तो फ्रुक्टोज, वो भी ग्लूकोज का आइसोमर है, लेकिन उसमें और कुछ फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि वो कीटो फॉर्म है, बाकी वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो रिंग है वो 6 कॉर्नर्ड है, नॉट द 6 कार्बन, 6 कॉर्नर्ड, क्योंकि एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन मौजूद है। इस रिंग को हम क्या कहते हैं? पायरोनोज। अब याद रखिएगा जो हेक्सोजिस होती हैं, यानी कि जो 6 कार्बन कंपाउंड वाली शुगर्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ये 2 तरह के रिंग्स बनाती हैं। ये 5 कॉर्नर्ड भी एंड 6 कॉर्नर्ड भी। अगर 5 कॉर्नर्ड बनाएंगी तो पायरोनोज रिंग, जैसे ये सामने बना हुआ है। सॉरी, अगर 6 कॉर्नर्स बनाएंगी तो पायरोनोज रिंग, और अगर 5 कॉर्नर रिंग बनाएंगी तो हमारे पास वो फ्यूरानोज कहलाएंगी। और फ्यूरानोज लाइक लाइक दिस,
यहाँ पे आप देखेंगे फ्रुक्टोज़ ये जो बीच में बना हुआ है, ये फ्रुक्टोज़ हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग है, इसीलिए ये फ्यूरानोज़ होगा, फ्रुक्टोफ्यूरानोज़। जबकि ग्लूकोज़ हमारे पास 6 कॉर्नर्ड रिंग है, तो ये ग्लूकोपाइरानोज़ होगा। अब अगर आप इसकी थोड़ी-सी डिटेल देखें, ग्लूकोज़ क्योंकि पेपर हमारे पास अब प्योर बायोकेमिस्ट्री का है और हम लोगों ने इनको अलग-अलग ही करना है और सबके स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं, सबकी इंपॉर्टेंस भी याद करनी है। ये एक हेक्सोज़ शुगर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है, मेजर एनर्जी सोर्स है हमारा, फोटोसिंथेटिक फर्स्ट प्रोडक्ट है, रिंग फॉर्म में मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको पायरोनोज कहते हैं। अब ये जो हमारे पास पायरोनोज होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये भी अगेन दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है, अल्फ़ा एंड बीटा स्ट्रक्चर। अब अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे से सिर्फ हाइड्रोक्सल की पोजीशन पे डिफर करते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन नंबर 1 एटम की वजह से डिफर करते हैं। अगर हमारे पास वो कार्बन नंबर 1 एटम के ऊपर हाइड्रोक्सल जैसे यहाँ बना हुआ है, ये नीचे की तरफ है हाइड्रोक्सल, तो ये अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर यही हाइड्रोक्सल ऊपर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा तो ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो ये जो बना हुआ है दिस इज़ द अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन। देन हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस में अगर आप देखोगे तो अगेन फ्री स्टेट में मौजूद है डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर, जैसे ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में बहुत ज़्यादा मौजूद है। आजकल अफ्तार में आप लोग खजूरें खा रहे हैं, सो खजूरों से मेनली एनर्जी मिल रही है, सो ग्लूकोज इज़ द मेन एनर्जी सोर्स। देन हमारे ब्लड में हम कहते हैं ना ब्लड शुगर लेवल 0.08% ग्लूकोज है। ये डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में भी है, लाइक प्योर ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो डाइसेकेराइड्स भी बनाती हैं। ग्लूकोज जैसे मिलता है तो मैल्टोज बना देगा, और पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, दीज आर कैरिंग द प्योर ग्लूकोज यूनिट्स। इसी तरह से मेजर एनर्जी सोर्स हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास जब ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है और इसमें ये हमारे पास ग्लूकोज बनता है जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन, वही एनर्जी जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो रिलीज़ करेगा, और वही एनर्जी फिर हमें अवेलेबल होती है फॉर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंक्शनिंग। मोनोसेक्राइड्स आई गेस आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, आपने स्ट्रक्चर के साथ याद करना है। कल इंशाल्लाह हम ओलिगो एंड पॉली दोनों साथ करेंगे क्योंकि पॉलीसेक्राइड में बहुत डिटेल्स हैं।